Good morning, class. Here now we are going to start a new chapter that is bones and muscle. जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है skeleton. The framework of bones that gives shape and support to the body is called the skeleton. It protects the delicate internal organs. Bones are the hard structure made of living cells and minerals. There are 206 bones in an adult skeleton. The main bones that comprise the skeleton are the skull, rib cage, backbone and two pairs of limbs. जो स्केलेटन होता है वो फ्रेमवर्क है बोन्स का जो बॉडी को शेप देता है एंड सपोर्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड स्केलेटन। और वो प्रोटेक्ट करता है डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स को। जो बोन्स होता है वो हार्ड स्ट्रक्चर से बना हुआ रहता है जिसमें लिविंग सेल एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड एडल्ट स्केलेटन में 206 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। द मेन बोन्स जो हैं वो कंप्राइज करते हैं स्कल, rib cage, backbone and two pairs of limbs. Now second topic we have that is skull. Okay, so skull is the hardest part of the body that protects the brain. The bones in the skull are fixed except the lower jaw. The movable lower jaw able us to talk and eat. The upper and lower jaw contain teeth that help us cutting and chew the food. So स्कल जो है हार्डेस्ट पार्ट में से एक है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ये जो स्कल के बोन्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं सिवाय लोअर जो के, जिसमें हमारे टीथ कंटेन करते हैं, क्योंकि टीथ की मदद से हम किसी से बात करते हैं, अपना खाना खाते हैं। सो दिस इज़ मूवेबल जो, ये मूव करता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है रिब केज। The rib cage is made of 12 pairs of thin curved bones is called ribs, which are attached to the backbone at the back and to flat bone called sternum in the front. However, the last two pair of ribs are not attached to the sternum and hence are called floating ribs. The rib cage protects the heart and lungs. रिबकेज जो है वो 12 पेयर्स ऑफ थिन कप्ड से बना हुआ होता है जिसे हम रिब्स कहते हैं। ये जो रिब्स होते हैं वो अटैच होते हैं बैकबोन से, उन्हें स्टर्नम कहा जाता है। और फ्रंट में पेयर ऑफ रिब्स जो आपस में अटैच नहीं होते उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। और ये जो रिबकेज है वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे हार्ट एंड लंग्स को। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दैट इज़ बैकबोन। ओके, so the backbone support the body and give protection to the spinal cord. The backbone is also called the vertebral column. This is made of 33 small and hollow bones called vertebra. These bones are arranged over each other and form a tube-like structure. It protects the delicate spinal cord and help us to bend and turn. बैकबोन जो है हमारे बॉडी का स्पाइनल कोड को सपोर्ट करता है, ठीक है। और जो बैकबोन को हम लोग वर्टेब्रल कॉलम के नाम से भी जाना जाता है। देयर आर 33 स्मॉल होल बोन्स जिसको वर्टेब्रा कहा जाता है। ये जो अरेंज्ड होते हैं आपस में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे स्पाइनल कोड को, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर एबल टू बेंड एंड टर्न। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज लिम्स, ठीक है। लिम्स, व्हाट इज लिम्स? The two pair of limbs have the forelimbs or arms and the hind limbs or legs. ये जो limbs हैं, two pair of limbs हैं, वो क्या होते हैं? एक forelimbs के नाम से जाने जाते हैं जिसे हम arms बोलते हैं and दूसरा hind limbs वो legs होता है, ठीक है। The arms are connected to the backbone with the help of shoulder glide. क्या होता है? जो arms होते हैं वो connected होते हैं backbone से, वो shoulder के help से, उसे हम गिडल बोलते हैं। The thigh bones or femur is the longest bone in our body. It bears the weight of the body.
जो बोन्स होता है थाई के, उसे हम फेम्योर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और वो लॉन्गेस्ट बोन है हमारे बॉडी का, वो पूरे वेट को कवर करते हैं, ठीक है। Now next is the function of skeleton. The skeleton provides shape and support to our body. Without the skeleton, our body system would not be able to stand. ठीक है, skeleton हमारे body को shape में रखता है, support करता है, और without skeleton, our body system will not able to stand. Okay, it provides protection to our soft and delicate organs. For example, skull protect brain, ribcage protects the heart and lungs, and the backbone protect the spinal cord. क्या होता है ना, जो स्केलेटन है वो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं स्कल, रिबकेज प्रोटेक्ट करते हैं हार्ट एंड लंग्स, और बैकबोन को प्रोटेक्ट करते हैं स्पाइनल कोड। नाउ द नेक्स्ट इज जॉइंट। ठीक है, व्हाट इज जॉइंट? जॉइंट आर द प्लेस वेयर टू बोन्स आर जॉइंट टुगेदर इन आवर बॉडी। ठीक है, जो जॉइंट होते हैं हमारे बॉडी में, टू बोन्स जहाँ जॉइंट होते हैं वो जॉइंट्स कहलाते हैं। जॉइंट्स कैन बी मूवेबल एंड इमूवेबल। जॉइंट्स जो हैं वो मूव भी करते हैं, और कुछ जॉइंट्स जो हैं वो इमूवेबल, जो मूव नहीं करते हैं, पर अधिकतर जॉइंट्स हैं वो मूवेबल हैं। नाउ नेक्स्ट इज मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, व्हाट आर मूवेबल जॉइंट्स? द जॉइंट्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड मूवेबल जॉइंट्स। ऐसा जॉइंट्स जो मूव करने में हमारी मदद करता है वो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी। ओके, 4 तरह के टाइप्स हैं जो मूव करते हैं जॉइंट्स। वो है हिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट एंड ग्लिडिंग जॉइंट्स। एंड नाउ ये सारे जॉइंट्स को हम लोग 1 by 1 जानेंगे। ओके, the first type of joint is hinge joint. A hinge joint allow movement only in back and forth direction. It acts just like a hinge of door. The elbow has a hinge joint. ये जो hinge joint है, just like a door, जो हम लोग डोर को ओपन क्लोज करते हैं ना, वो आपस में दैट सामने आते वो दूर चले जाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स वी कॉल्ड हिंज जॉइंट। तो एग्जाम्पल एल्बो एंड नी। ओके, वी सी ना, एल्बो एंड नी हम लोग फोल्ड करते हैं, आपस में जॉइंट होते हैं, फिर दूर चले जाते हैं। सो दिस इज। Now second types of joints we are going to discuss, that is ball and socket joint. The shoulder and hips region have the ball and socket joint. They allow movement in all the direction. ठीक है, क्या होता है ना, शोल्डर एंड हिप्स जो हैं वो बेस्ट एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स को। दिस जॉइंट हेल्प इन मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, ऑल द डायरेक्शन दे कैन मूव। वन बोन्स एंड लाइक अ बॉल, जो एक बोन्स होते हैं वो बॉल के जैसा में ख़त्म होता है, एंड अदर लाइक अ कप, they fit into the each other. The third types of joint is pivot joint. What is pivot joint? Okay, so it is found in the neck. It lets you turn your head. You can move your head in semicircle. You can also move your head in up and down movement. ये जो pivot joint है वो नेक में पाया जाता है। ठीक है, with the help of this joint हम लोग उसे सेमी सर्कल में मूव करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये joints को pivot joints we say. Now the fourth is gliding joint. What is gliding joint? It allow movement between the connecting bones like wrist, ankle or the vertebra of the spine. ओके, ग्लिडिंग जॉइंट जो है वो मूवमेंट करने में हेल्प करता है बिटवीन द कनेक्शन ऑफ बोन्स, जैसे कि wrist, ankle and vertebral spine में। Now the next is what? Muscles. Okay, what is muscles? Our bones cannot move on their own. They need muscles to move them. Muscles are made of tough elastic tissue which are connected to the bones by strong fibers called tendons. ये जो bones हैं वो muscles के बिना मूव नहीं करेंगे। ठीक है, muscles जो हैं वो elastic tissue से बना हुआ होता है, जो strong fiber connect करते हैं, that is called tendons. There are about 650 muscles in our body. जो हमारे bodies में total muscles present होते हैं वो 650 होते हैं। Muscles can only pull at the बोन्स, दे कैनॉट पुश। जो मसल्स हैं वो पुल कर सकते हैं बट कैनॉट पुश। सो टू मूव द बोन्स इन वन डायरेक्शन एटलीस्ट 2 मसल्स आर रिक्वायर्ड। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ मसल। ओके, सो द टाइप्स ऑफ मसल, फर्स्ट इज स्केलेटन मसल, सेकेंड इज स्मूथ मसल्स,
and third is cardiac muscle. So in next we will see one by one. Okay, now the types of muscle. The first is what? The skeletal muscle. द स्केलेटल मसल लाइज बिटवीन द स्किन एंड द बोन्स. ठीक है, जो स्केलेटल मसल्स हैं वो स्किन एंड बोन्स में लाई करते हैं. जो स्केलेटल मसल्स हैव वॉलेंट्री मूवमेंट. एग्जाम्पल, स्केलेटल मसल्स कैन मूव एट आवर विल. स्केलेटल मसल्स आर यूज्ड इन रनिंग, वॉकिंग, लाफिंग एंड ईटिंग. ठीक है, जो मसल्स को ऑर्डर हम लोग देते हैं, ठीक है, वी गिव ऑर्डर, ठीक है, तो वो वॉलेंट्री मसल्स कहलाता है. दैट्स वाई स्केलेटल मसल इज वॉलेंट्री मसल्स. ठीक है, मसल्स आर यूज्ड इन रनिंग, वॉकिंग, लाफिंग एंड ईटिंग. द नेक्स्ट that is smooth muscle. Okay, what is smooth muscle? Muscles have some body organs such as wall of stomach and intestine have smooth muscles. ये जो muscles होते हैं ना organs के, that is stomach wall में, intestine में, ये smooth muscle present होते हैं, बने हुए रहते हैं. These muscles work on their own. ये muscles अपने आप काम करते हैं. ठीक है, इन्हें किसी का ऑर्डर का जरूरत नहीं पड़ता है. So these are called involuntary muscles. That's why इन्हें involuntary कहा जाता है. ठीक है, इससे पहले हम लोग वॉलेंट्री पढ़े थे ना, वॉलेंट्री जो हम लोग ऑर्डर देते हैं, एंड इनवॉलेंट्री दे वर्क देयर ओन. ओके, नाउ द लास्ट इज कार्डिक मसल. कार्डिक मसल इज व्हाट? कार्डिक मसल, द मसल ऑफ आवर हार्ट आर कार्डिक मसल. कार्डिक मसल वर्क कंटिन्यूसली सिंस आवर बर्थ. ये जो कार्डिक मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री है. ठीक है, वो अपने आप काम करते हैं. और जो हार्ट्स बीटिंग वो अपने आप होते हैं ना, हम लोग ऑर्डर नहीं देते. दैट्स वाई दैट इज इनवॉलेंट्री मसल. एंड द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ कार्डिक मसल काउंट 1 हार्ट बीट. ओके, तो हम लोग फिर से जानेंगे टाइप्स ऑफ मसल. स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल. स्केलेटल मसल है वो वॉलेंट्री मसल है, वो हम लोग ऑर्डर देते हैं. ठीक है, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल दे आर इनवॉलेंट्री, दे डू देयर ऑन. Now the last topic we are going to discuss, that is how do muscles work. Okay, so the muscle works in pairs of contraction and expansion. A contracted muscles become tighter and shorter. When an unexpanded muscles relaxed, it goes back to its original shape. The bicep and triceps in our body arms are voluntary muscles that works together. To maintain the muscle in good shape, one must follow the proper position while sitting or standing. ठीक है, जो प्रॉपर मसल्स वर्क कैसे करते हैं? गुड पोजिशंस वी गिव देम ओनली. पोजिशन, पोस्चर मीन्स दैट इज पोजिशन.